وہ دن جب ہیرا نے اپنے بچپن کی خاموش محبت کے ساتھ نکاح کرنے کا خواب دیکھا تھا، اب اس کی زندگی سب سے تلخ لمحوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ بیوٹی پارلر میں جب فل باڈی ویکس کا ذکر ہوا تو ہیرا کا چہرہ زرد پڑ گیا اور ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے اور قدم رک گئے۔ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا، کیا یہ سب کروانا واقعی ضروری ہے؟ ثنا جو 6 ماہ پہلے خود دلہن بن چکی تھی، ہنستے ہوئے قریب آئی اور کہا، میری بہادر دوست، کچھ نہیں ہوتا، میں نے بھی سب کروایا تھا، اب اتنی مت ڈرو۔ ہیرا نے پریشان لہجے میں جواب دیا، تم آسانی سے بول رہی ہو، برداشت تو مجھے کرنا ہے، میرا دل ابھی سے گھبرا رہا ہے۔ ثنا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بس چند منٹ کی بات ہے، پھر خود ہنسو گی۔ ہیرا نے گہری سانس لی اور اندر چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا، 4 لمحے سکون سے گزرے، پھر اچانک اندر سے ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ ہیرا کی آواز آئی، اے اللہ، یہ کیا کر دیا؟ پارلر والی لڑکیاں ہنسنی دبانے لگیں، دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپا لیا اور ہنستے ہوئے کہا، ابھی تو شروعات ہوئی ہے۔ کچھ لمحے بعد دوسری چیخ آئی۔ ہیرا نے زور سے کہا، بس اب نہیں ہو رہا۔ اپنے ہنسی پر قابو نہ رکھ سکی اور کرسی پر بیٹھے بیٹھے دوہری ہو گئی۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا، ہیرا باہر نکلی، چہرہ سرخ، آنکھوں میں پانی بھرا ہوا، چلنے کا انداز ایسا جیسے ہر قدم مشکل سے اٹھ رہا۔ ثنا نے اسے اوپر نیچے دیکھا، پھر زور سے ہنس پڑی اور کہا، اندر تو میری سہیلی گئی تھی، یہ پنگوائن کی طرح کون چلتا ہوا آ رہا ہے؟ ہیرا نے منہ بنا کر کہا، ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، تمہیں تو سب یاد ہونا چاہیے، تم بھی 6 ماہ پہلے یہی سب کچھ برداشت کر چکی ہو۔ ثنا نے شرارتی انداز میں کہا، یہ سب تو کچھ بھی نہیں، جو ابھی تم نے اتنی چیخیں ماری ہیں، شادی والی رات تمہارا کیا حال ہوگا؟ ہیرا نے شرماتے ہوئے کہا، بس اب چلو یہاں سے، ایک لفظ بھی مت بولنا۔ ثنا نے چھیڑتے ہوئے کہا، میں تو ابھی سے سوچ رہی ہوں فراز بھائی کتنے حیران ہوں گے۔ ہیرا نے جلدی سے کہا، خاموش رہو، کوئی سن لے گا۔ پارلر سے نکلتے دونوں شاپنگ مال کی طرف چل پڑے۔ دلہن کے جوڑے، جوتے، زیورات، مہندی کا سامان، میک اپ کی چیزیں ایک ایک کر کے خریدتی رہی۔ ہر نئی چیز دیکھ کر ہیرا کے چہرے کی خوشی بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر لمحہ اسے یہ احساس دلا رہا تھا کہ اس کے خواب حقیقت بننے والے ہیں۔ رات گئے وہ سارا سامان لے کر گھر پہنچی۔ کمرے میں آتے ہی بستر پر بیٹھ گئی، موبائل ہاتھ میں لیا، سکرین روشن ہوئی، فراز کے کئی پیغامات موجود تھے۔ ہیرا کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ پھیل گئی۔ فراز نے لکھا تھا، کہاں غائب تھی پورا دن، انتظار کرتا رہا۔ ہیرا نے لکھا، آج دلہن بننے کی تیاری چل رہی تھی، بہت ظلم ہوا میرے ساتھ۔ فراز نے لکھا، اتنی تکلیف ہوئی۔ ہیرا نے لکھا، مت پوچھو، آج مجھے لگا میں بچ نہیں پاؤں گی۔ فراز نے لکھا، اب اتنی بھی ڈرامے باز مت بنو۔ ہیرا نے لکھا، تمہیں ہنسی آ رہی ہے، یہاں میری جان نکل گئی تھی۔ فراز نے لکھا، بدلے میں آئس کریم کھلا دوں گا۔ ہیرا نے لکھا، صرف آئس کریم سے کام نہیں چلے گا۔ فراز نے لکھا، جو حکم میری ہونے والی بیگم۔ یہ جملہ پڑھتے ہی ہیرا کے گال سرخ ہو گئے، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ موبائل سینے سے لگا کر مسکرا دی۔ اس کے دل میں واقعی لڈو پھوٹ رہے تھے، کیونکہ بچپن سے وہ جس قدم کو وہ خاموشی سے پسند کرتی تھی، چند ہی دن بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس کا ہونے والا تھا۔ شادی میں صرف 4 دن باقی رہ گئے تھے۔ پورا گھر روشنی سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف کپڑوں کے ڈبے، تحفوں کے تھیلے، مہندی کی خوشبو، رشتہ داروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ہیرا کے چہرے پر مسکراہٹ آ رہی تھی اور ہر وقت رہتی تھی، کیونکہ اس کے دل میں ایک ہی شخص تھی، وہ ایک ہی خوشی تھی، اور اس شخص کی دلہن بننے والی تھی جسے وہ برسوں سے خاموشی کے ساتھ چاہتی تھی۔ ہیرا ہر روز رات کو فراز سے باتیں کرتی۔ دونوں جانتے تھے کہ ان دونوں کے خاندان میں پسند کی شادی کا کوئی رواج نہیں تھا، اس لیے انہوں نے اپنی محبت کو کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا۔ ہر قدم بہت احتیاط سے اٹھایا، ہر بات ایسے کی جیسے رشتہ صرف بڑوں کی پسند سے طے ہوا ہو، کسی کو ذرا برابر شک نہ ہوا۔ یہی بات دونوں کو سب سے زیادہ خوشی دیتی، مگر کہتے ہیں محبت جتنی سچی ہوتی ہے، اس کے دشمن بھی کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہوتے ہیں۔ ایک ایسا سایہ بھی ان دونوں کی خوشیوں کے گرد منڈلا رہا تھا، جس کے بارے میں نہ ہیرا کو خبر تھی اور نہ ہی فراز کو۔ رات کے وقت موبائل کی اسکرین روشن ہوئی۔ ہیرا نے لکھا، مجھے ہمیشہ سے لو میرج کرنے کا شوق تھا، قسمت دیکھو، بغیر کسی کو پتہ چلے اپنی پسند بھی مل گئی۔ فراز نے لکھا،
किस्मत ने साथ दिया, वरना हमारे घर वाले कभी मानते ही नहीं। हीरा ने लिखा, मुझे तुम जैसे भोले लड़के पसंद हैं, मुझे ज्यादा रोक वाले मिजाज पसंद नहीं। फराज ने लिखा, मैं भी कोई इतना भोला भाला नहीं हूँ, शादी हो जाए फिर पता चलेगा मैं कितना भोला हूँ। हीरा ने लिखा, हाँ मुझे सब पता है, मैं इस मामले में तुम बहुत बड़े शैतान हो। फराज ने लिखा, अभी से इतनी मालूमात। हीरा ने लिखा, फिक्र मत करो, मैं भी तुम्हारे बराबर हूँ। फराज ने लिखा, फिर तो मुकाबला दिलचस्प रहेगा। हीरा ने लिखा, मुकाबला नहीं मोहब्बत होगी। इस पैगाम के बाद दोनों देर तक मुस्कुराते रहे, आने वाले दिनों के ख्वाब देखते रहे। फिर वो दिन भी आ गया जिसका दोनों को बेसब्री से इंतजार था। शहर के सबसे बड़े शादी हाल को रोशनी से सजा दिया गया। सुनहरे झूमर चमक रहे थे, फूलों की खुशबू पूरे माहौल में फैली हुई थी। 400-500 मेहमान हाल में मौजूद थे। हर तरफ मुबारकबादों की आवाज़ें गूंज रही थीं। स्टेज निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। सबकी नज़रें दुल्हन के इंतजार में थीं। दुल्हन के कमरे में हीरा आईने के सामने बैठी थी। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने सुर्ख रंग का इंडियन स्टाइल लहंगा पहना हुआ था, पीछे डोरियों वाला ब्लाउजर था, बारीक काम वाला दुपट्टा सर पे रखा हुआ था। जेवरात इसकी खूबसूरती को मजीद निखार रहे थे। सना ने जिसे इसके लिबास को गौर से देखकर इसकी आंखें फैल गई। सना ने हंसते हुए कहा, ये किस किस्म के कपड़े हैं? ऐसे कपड़े हमारे यहाँ कौन पहनता है? हीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, नीचे लहंगा ही है, बस ऊपर इंडियन स्टाइल रखवाया है। सना ने शरारती अंदाज में कहा, ये पीछे डोरियां क्यों हैं? हीरा ने शर्माते हुए कहा, फराज को ऐसे ही पसंद थी। सना ने हंसते हुए कहा, हाँ डोरियां भी तो वही खोलेगा। हीरा ने फौरन कहा, और कौन खोलेगा? क्या हमसाया खोलेगा? यह सुनकर दोनों जोर से हंस पड़ी। सना ने कहा, तुम वाकई बहुत शरारती हो। हीरा ने हंसते हुए कहा, पसंद की शादी करें, थोड़ी बहुत ख्वाहिशें तो पूरी करनी चाहिए ना। सना ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी शादी हो जाना ही बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने के बराबर है। हीरा ने आहिस्ता से कहा, यह बात तो सच है। सना ने दुपट्टा दुरुस्त करते हुए कहा, चलो अभी इसको अच्छी तरह कवर कर देते हैं, किसी को पता चलेगा पीछे से कैसे कपड़े पहने हुए। हीरा ने कहा, वैसे भी फराज के अलावा किसी ने देखना ही नहीं। सना ने कहा, बस अब खामोशी से बैठी रहो, कहीं दुपट्टा दोबारा न सिरक जाए। सना बार बार इसका दुपट्टा दुरुस्त कर रही थी, बालों को संवार रही थी। हीरा के हाथ खुशी से कांप रहे थे, दिल की धड़कन हर गुजरते लम्हे के साथ तेज हो रही थी। हाल में काजी साहब पहुंच चुके थे, निकाह की तैयारियां मुकम्मल थीं। दोनों खानदान खुश थे, मेहमान मुस्कुरा रहे थे। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले चंद लम्हों में ऐसा कुछ होने वाला था जो इस खुशियों भरे माहौल को हमेशा के लिए बदल देगा। शादी हाल की रोशनियां पहले की तरह जगमगा रही थीं। मेहमान अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे। बच्चों की हल्की हल्की आवाज़ें, फूलों की खुशबू, बर्तनों की खनक, सब कुछ एक खूबसूरत तकरीब का एहसास दिला रहा था। स्टेज के करीब काजी साहब अपनी जगह पर बैठे निकाहनामा तरतीब दे रहे थे। खानदान के बुजुर्ग ऐसा इनके गिर्द जमा हो रहे थे। काजी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर सब लोग तैयार हैं तो निकाह की कार्रवाई शुरू कर लेते हैं। दोनों खानदान के बुजुर्ग इस बात में साथ हिलाने लगे। इसी दौरान हाल के पिछले हिस्से में दो जवान अपने मोबाइल की स्क्रीन को हैरत से देखने लगे। फिर दोनों ने एक दूसरे के कान में कुछ कहा। इनके चेहरों की मुस्कुराहट चंद लम्हों में गायब हो गई। चंद कदम के फासले पर खड़े एक और शख्स के मोबाइल पर भी इतला आई। इसने स्क्रीन देखी, फिर फौरन नजरें झुका ली, जैसे इसे अपनी आंखों पर यकीन भी न आया हो। हाल में अभी तक मौसीकी की मध्यम आवाज़ें चल रही थी। मेहमान एक दूसरे से बातें कर रहे थे, मगर अभी सरगोशियों का एक नया सिलसिला भी शुरू हो चुका था। एक शख्स ने धीमी आवाज में कहा, ये क्या भेजा है? दूसरे ने हैरानी से कहा, यकीन नहीं आ रहा। पहले ने कहा, किसी और को भी आया है। चेहरे पर कई मोबाइल एक साथ बजने लगे। हर तरफ लोग अपनी स्क्रीनों की तरफ देखने लगे। किसी के चेहरे पर हैरत थी, किसी के चेहरे पर बेयकीनी, किसी की पेशानी पर शक्लें उभर आईं। सरगोशियां एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच चुकी थीं। कुछ लोगों ने स्क्रीन देखते हुए अपना मोबाइल बंद कर दिया। एक खातून ने घबरा कर कहा, तौबा तौबा। दूसरे ने कहा, यह क्या मुसीबत आ गई है? एक बुजुर्ग ने कहा, मैं ऐसी चीज
देखना भी नहीं चाहता। रफ्ता रफ्ता वही तस्वीर मुख्तलिफ लोगों के मोबाइलों तक पहुंचने लगी, जिनमें हीरा जैसी नजर आने वाली एक लड़की इंतहाई नामुनासिब लिबास में नजर आ रही थी। साथ चंद मुख्तसर वीडियोस भी गर्दिश कर रही थी। किसी को ये मालूम नहीं था कि ये हकीकत थी या किसी की घटिया साजिश, मगर देखने वालों के चेहरे पर हैरत साफ नजर आ रही थी। कुछ लोग बगैर कुछ कहे मोबाइल आगे बढ़ा देते, कुछ कुछ देखते इनकार कर देते। सरगोशियां वाज़ेह जुमलों में बदलने लगी थीं। एक आदमी ने कहा, यह तो दुल्हन लग रही है। दूसरे ने कहा, अल्लाह खैर करे। तीसरे ने कहा, अगर यह बात सच हुआ। फिर बात आहिस्ता आहिस्ता फराज के वाले तक पे पहुंच गई। उन्होंने हैरत से मोबाइल लिया, स्क्रीन पर नजर डाली, फिर इनके चेहरे का रंग बदल गया। इन्होंने फौरन मोबाइल अपनी अहलिया की तरफ बढ़ा दिया। फराज की वालिदा ने जैसे देखा, इनके हाथ कांपने लगे। इन्होंने गुस्से भरे लहजे में कहा, ये क्या देख रही हूँ मैं। इनके इर्द गिर्द खड़े रिश्तेदार भी परेशान हो गए। चंद लम्हों बाद वही मवाद फराज के मोबाइल पर भी आ पहुंचा। इसने स्क्रीन खोली, चंद सेकंड तक खामोश रहा। इसके चेहरे से सारी रौनकें गायब हो गईं। इसने दोबारा गौर से देखा, पजी से इसकी सांस ही रुक गई। दुल्हन के कमरे में अभी तक हीरा अपनी सहेलियों के दरमियान बैठी हुई थी। वो आने वाले खूबसूरत लम्हों के बारे में सोच रही थी, मगर अचानक इसने महसूस किया कि बाहर का शोर बढ़ने लगा है। पहले हल्की आवाज़ें आईं, फिर कई लोगों के साथ एक दूसरे के साथ गुस्से से बुलंद आवाज़ें आने लगीं। जुमले सुनाने चौंक का दरवाजे की तरफ देखा। सना ने परेशानी से कहा, क्या लगता है बाहर कोई मसला हो गया है? हीरा ने हैरत से कहा, क्या मसला? सना ने कहा, अभी देख कर आती हूँ। सना जल्दी से बाहर निकली। 4 मिनट बाद वापस आई। इसके चेहरे की सारी रंगत उड़ चुकी थी, हाथ कांप रहे थे, आंखों में खौफ साफ नजर आ रहा था। हीरा ने घबरा कर कहा, क्या हुआ सना? सना से धीमी आवाज में कहा, बाहर बहुत बड़ा हंगामा हो गया है। हीरा ने बेचैनी से कहा, आखिर बात क्या है? सना ने लड़खड़ाती आवाज में कहा, किसी ने तुम्हारे नाम से कुछ तस्वीरें सबके मोबाइल पर भेज दी हैं। हीरा चंद लम्हों तक खामोश बैठी रही। इसे लगा शायद वो गलत सुन रही है। हीरा ने आहिस्ते से कहा, यह नामुमकिन है। ऐसे लम्हे बाहर से एक खातून की बुलंद आवाज सुनाई दी। फराज की ताई ने गुस्से से कहा, ऐसे लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती। ये जुमला सुनते ही दुल्हन के कमरे में मौजूद हर शख्स एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। 4 लम्हे पहले तक खुशियों से भरे इस शादी हाल पर अब खामोशी, खौफ, इल्जाम, सरगोशियां, गुस्से का एक ऐसा साया छा चुका था जिसने हर मुस्कुराहट को निगल लिया था। शादी हाल के 4 लम्हे पहले वाली रौनक अब किसी डरावने ख्वाब में बदल चुकी थी। रोशनी अब भी वैसी थी, फूल अब भी वैसे ही सजे थे, काजी साहब अब भी अपनी जगह मौजूद थे, मगर हर चेहरे पर खुशी की जगह हैरत, गुस्सा, खौफ, बेयकीनी ने ले लिया था। हर तरफ सरगोशियां थीं, हर हाथ में मोबाइल था, हर नज़र किसी न किसी स्क्रीन पर जमी हुई थी। दुल्हन के कमरे का दरवाजा खुला। हीरा लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर आई। इसकी आंखें बार बार लोगों के चेहरों पर जा रही थीं। किसी की नज़र में हमदर्दी नहीं थी, किसी की नज़र में एतमाद नहीं था। हर शख्स उसे ऐसे देख रहा था जैसे चंद लम्हे वो एक मासूम लड़की से एक इल्ज़ाम बन चुकी हो। सना ने कांपते हाथों से मोबाइल इसके सामने किया। हीरा ने जैसे स्क्रीन पर नज़र डाली, इसका पूरा वजूद लर्ज़ गया। हीरा ने टूटती हुई आवाज़ में कहा, यह मैं नहीं हूँ। इसने बेअख्तियार दूसरा मोबाइल पकड़ा, फिर तीसरा। स्क्रीन पर वही तस्वीर थी, वही वीडियोस। हीरा ने रोते हुए कहा, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, ये मैं नहीं हूँ। किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया है। मगर इसकी आवाज़ शोर में दबती जा रही थी। एक औरत ने कहा, वीडियो तो साफ नज़र आ रही है। तो इसी ने कहा, आजकल ये कहते हैं कि एक बुजुर्ग ने अफसोस से कहा, तौबा तौबा। हीरा एक शख्स के सामने जाकर अपनी सफाइयाँ देती रही। हीरा ने कहा, खुदा की कसम ये झूठ है, मैं ऐसी नहीं हूँ। मगर जवाब में सिर्फ खामोशी नजर आई और सब ने अपना मुंह फेर लिया। दूसरी तरफ आसिफ साहब की हालत हर गुजरते लम्हे के साथ खराब होती जा रही थी। वो कुर्सी पर बैठे थे, हाथ सीने पर रखा हुआ था, सांस बेतरतीब हो रही थी। इनकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, ये सब हुआ कैसे? आसिफ साहब ने भारी आवाज में कहा, मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया? इनके करीबी रिश्तेदार उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। किसी के पास जवाब नहीं था। किसी को मालूम नहीं था कि यह तस्वीर पहली बार किसके मोबाइल पर आई, किसने भेजी, किसने आगाज किया, कहां से आई। सिर्फ चंद मिनटों में वो हर मोबाइल तक पहुंच चुकी थी।
ہیرا خاندان کے سب سے پڑھی لکھی لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی، اس کے اخلاق کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ اس کے لیے پہلے بھی کئی رشتے آئے تھے، کئی لوگوں کو انکار کیا گیا تھا۔ رشتے دار آہستہ آہستہ یہ اندازہ لگا رہے تھے۔ ایک شخص نے کہا شاید جن لوگوں نے پہلے انکار سنا تھا انہی میں سے کسی نے یہ سب کیا ہو۔ دوسرے نے کہا مگر وہ لوگ تو شادی پہ بھی نہیں آئے۔ پہلے نے کہا دشمن سامنے آ کر وار نہیں کرتے۔ ہیرا مسلسل روتی جا رہی تھی۔ اس سے اچانک ایک ہی خیال آیا۔ فراز وہ تیزی سے لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتی ہوئی اس کی طرف بڑھی۔ فراز ایک طرف خاموشی سے کھڑا تھا، اس کے ہاتھ میں بھی موبائل تھا، وہ مسلسل زمین کو دیکھ رہا تھا۔ ہیرا نے روتے ہوئے کہا فراز میری طرف دیکھو، تم تو جانتے ہو نا میں ایسی نہیں ہوں۔ فراز خاموش رہا۔ ہیرا نے اس کے بازوؤں کو پکڑتے ہوئے کہا کچھ تو بولو، تمہیں میری محبت پر یقین ہے؟ یقین ہے نا؟ فراز نے آہستہ سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ ہیرا نے بے بسی سے کہا میری آنکھوں میں دیکھو، ایک بار فراز میری بات سن لو۔ پہلی بار نظر اٹھائی مگر ان نظروں میں پہلی والی محبت موجود نہیں تھی۔ فراز نے سخت لہجے میں کہا تم جیسی لڑکی سے میں شادی نہیں کر سکتا۔ یہ الفاظ ہیرا کے دل پر کسی تیز دھار ہتھیار کی طرح لگے۔ ہیرا نے روتے ہوئے کہا تم بھی مجھ پر یقین نہیں کر رہے فراز۔ فراز نے کہا آج کے زمانے میں کسی لڑکی کی ایسی ویڈیو وائرل ہو جائے پھر اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہتا۔ ہیرا نے کہا تم میری بات سننے بغیر فیصلہ کر لیا۔ فراز نے کہا میری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا رخ موڑ لیا۔ ہیرا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ جس انسان کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، جس کے ساتھ ہر راز مستقبل کی باتیں کی تھیں، جس کے لیے ہر مشکل برداشت کرنی تھی اور وہ اس کے لیے تیار بھی تھی، آج اس نے چند لمحوں میں اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ادھر فراز کی والدہ نے بلند آواز میں واپسی کا اعلان کر دیا۔ بارات میں آئے لوگ ایک ایک کر کے ہال سے نکلنے لگے۔ چند منٹ پہلے جو لوگ مبارکباد دے رہے تھے اب خاموشی سے گاڑیوں کی طرح بڑھ رہے تھے۔ کیونکہ دونوں خاندان آپس میں رشتے دار تھے، اس لیے ہیرا کے ددیال کے اکثر لوگ ہی انہی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ حال آہستہ آہستہ خالی ہونے لگا، صرف ہیرا کے ننیال والے چند قریبی لوگ باقی رہ گئے۔ ثنا مسلسل ہیرا کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ اس کی ہتھیلیاں مل رہی تھی، پانی پلانے کی کوشش کر رہی تھی مگر ہیرا کی آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ادھر آصف صاحب کی سانس مزید بے ترتیب ہونے لگی، ان کے چہرے پر زردی پھیلتی جا رہی تھی۔ اسی لمحے حال کے داخلی دروازے کی طرف سے چند لوگوں کی نظریں ایک ساتھ اٹھی۔ کالے رنگ کے نفیس سوٹ میں ملوث ایک باوجہ شخص اپنے دو معاونین کے ساتھ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ وہ غالباً اوپر کے منزل سے نیچے آیا تھا۔ اسی ہوٹل کے ایک فلور پر اس کی کاروباری میٹنگ جاری تھی۔ واپسی کے دوران اس نے نیچے غیر معمولی ہنگامہ دیکھا، کسی تجسس نے اسے روک جانے پر مجبور کر دیا۔ وہ قریب آیا، اس کی نظریں بے اختیار ہیرا پر جا ٹھہریں۔ چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا، آنکھیں سرخ تھیں، مہندی لگے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے ایک لمحے کے لیے جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کی، یہ وہی لڑکی تھی جسے اس نے کئی ماہ پہلے ایک کالج فنکشن میں دیکھا تھا۔ اس دن ہیرا نے مسکراتے ہوئے صرف اتنا کہا تھا ذرا راستہ دے دیجئے۔ وہ مختصر سے جملہ آج بھی اسے یاد تھا۔ وہ شخص تھا زین کاظمی، شہر کا معروف ترین کاروباری خاندان کا نام۔ وہ سیدھا آصف صاحب کے پاس آیا۔ زین نے پرسکون لہجے میں کہا کیا ہوا ہے؟ آپ کو کسی نے مختصر پورا واقعہ اسے بتا دیا۔ زین چند لمحوں تک خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے ایک نظر ہیرا کی طرف دیکھا۔ وہ لڑکی بار بار یہی کہہ رہی تھی یہ میں نہیں ہوں۔ زین نے دوبارہ آصف صاحب کی طرف دیکھا، ان کی حالت مسلسل بگڑ رہی تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے دھیرے سے کہا، زین نے کہا میری بات غور سے سنیں، میں اس سے کوئی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آصف صاحب نے بے جان نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ زین نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آس پاس کھڑے سب لوگ حیرت زین کو دیکھتے رہ گئے۔ زین نے کہا میں ایک بات پہلے ہی صاف کر دینا چاہتا ہوں، میں کسی دھوکے کے ساتھ رشتہ نہیں بناتا۔ مجھے اپنی زندگی میں صرف ایک وارث چاہیے، اس لیے میں فیصلہ اس وقت کر رہا ہوں۔ آصف صاحب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان کے سامنے ایک طرف برسوں کی عزت بکھری پڑی تھی، دوسری طرف بیٹی کا مستقبل۔ انہوں نے چند لمحے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آصف صاحب نے بھری آواز میں کہا مجھے رشتہ قبول ہے،
हाल अब तकरीबन खाली हो चुका था। चंद कुर्सियां उल्टी पड़ी थी, कुछ फूल जमीन पर बिखर गए थे। रोशनी अब भी वैसी थी, मगर खुशियों की जगह एक अजीब सी वीरानी ने ले ली थी। पहले जहां खुशियों की आवाजें गूंज रही थी, वहां अब सिर्फ आहिस्ता आहिस्ता होने वाली बातें सुनाई दे रही थी। आसिफ साहब काफी देर तक खामोश बैठे रहे। इनकी नजरें मुसलसल जमीन पर जमी हुई थी। चेहरे पर टूट जाने की कैफियत साफ नजर आ रही थी। वो एक बार भी हीरा की तरफ नहीं देख पा रहे थे। चंद लम्हों बाद इन्होंने गहरी सांस ली, फिर ऐसे से कहा, आसिफ साहब ने हीरा को बुलाओ। सना दिल थामे दुल्हन के कमरे में गई। हीरा आप भी वहीं बैठी थी, मेहंदी लगे हाथ गोद में रखे हुए, आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। काजल पूरे चेहरे पर फैल चुका था। सना ने धीमी आवाज में कहा, चलो अब्बा बुला रहे। हीरा ने टूटे हुए लहजे में कहा, फराज वापस आ गया। सना खामोश रही। हीरा ने फिर कहा, कुछ बोलो सना। सना ने सिर्फ इतना कहा, चलो। हीरा आहिस्ता आहिस्ता बाहर आई। आसिफ साहब इसके सामने खड़े थे। इनकी आंखों में गुस्सा भी था, दुख भी, शर्मिंदगी भी, मगर मोहब्बत कहीं दब कर रह गई थी। हीरा ने रोते हुए कहा, अब्बू मेरी बात सुन ले, खुदा के लिए मैं बेकसूर हूँ। आसिफ साहब ने नजरें दूसरी तरफ फेर ली। हीरा ने कहा, अब्बू एक बार मेरी तरफ देखें। इन्होंने फिर भी इसकी तरफ ना देखा। आसिफ साहब ने सख्त लहजे में कहा, तुम्हारा निकाह होगा। हीरा चंद लम्हे इन्हीं देखती रह गई। हीरा ने हैरत से कहा, किससे? आसिफ साहब ने कहा, जैन काज़मी से। हीरा ने बेअख्तियार कहा, क्या? आसिफ साहब ने कहा, जो कहा है वही होगा। हीरा ने रोते हुए कहा, अब्बू मैं किसी और से कैसे शादी कर सकती हूँ? आसिफ साहब ने कहा, खामोश रहो। हीरा ने कहा, मेरी बात तो सुन लो। आसिफ साहब ने गुस्से से कहा, आज बहुत बातें सुन ली। हीरा ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। आसिफ साहब ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। इनके दिल में एक खौफ जन्म ले रहा था। वो अपनी बेटी को जानते थे, मगर आज जो कुछ इनकी आंखों के सामने हुआ था, इनको यकीन ने हिलाकर रख दिया था। वो खुद से भी यही सवाल कर रहे थे, क्या मैंने इसे बहुत ज़्यादा आज़ादी दी? क्या मेरी परवरिश में कोई कमी रह गई? क्या वाकई मुझसे कोई गलती हुई? ये सवाल उन्हें अंदर ही अंदर तोड़ रहे थे। हीरा ने रोते हुए कहा, अब वो खुदा के लिए मेरी कसम खा लूं, मैं बेकसूर हूँ। आसिफ साहब ने कहा, अब कसमों से कुछ नहीं होगा। काजी साहब दोबारा अपनी जगह पर आ बैठे। जैन खामोशी से सामने मौजूद था। उसके चेहरे पर ना खुशी थी, ना मुस्कुराहट, ना किसी कामयाबी का एहसास, सिर्फ संजीदगी थी। हीरा वहीं खड़ी मुसलसल रो रही थी। हीरा ने कहा, मैं निकाह नहीं करना चाहती। आसिफ साहब ने सख्त आवाज में कहा, बैठ जाओ हीरा। हीरा ने कहा, वो प्लीज। आसिफ साहब ने पहली बार बुलंद आवाज में कहा, बैठ जाओ हीरा। हीरा सहम कर खामोशी से बैठ गई। उसकी हिचकियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। काजी साहब ने निकाह की कार्रवाई शुरू की। अल्फाज हाल में गूंजने लगे। हीरा की समाज जैसे बंद हो चुकी थी। वो सिर्फ रोती जा रही थी। जब कबूल करने का वक्त आया, चंद लम्हों तक खामोशी छाई रही। आसिफ साहब ने सख्त लहजे में कहा, जवाब दो। हीरा ने आंसू साफ किए। इसके होंठ कांप रहे थे। हीरा ने टूटती आवाज में कहा, कबूल है। ये अल्फाज अदा करते हुए इसकी हिम्मत जैसे खत्म हो गई थी। इधर जैन ने पुरसुकून लहजे में निकाह कबूल कर लिया। चंद गवाहों ने दस्तखत किए। काजी साहब ने निकाह खत्म होने का ऐलान कर दिया, मगर इस ऐलान पर ना किसी ने मुबारकबाद दी, ना किसी ने मुस्कुराया, ना किसी ने तालियां बजाई। सिर्फ खामोशी थी, ऐसी खामोशी जो हर दिल पर बोझ बनकर बैठ गई। हीरा आहिस्ता आहिस्ता अपने वालिद की तरफ बढ़ी। वो इनके गले लगना चाहती थी। वो चाहते थे कि एक बार वो इसकी बात सुन लें। हीरा ने रोते हुए कहा, अबू एक बार मेरी तरफ देख ले। आसिफ साहब ने अपना रुख दूसरी तरफ मोड़ लिया। हीरा ने कहा, अबू मैं बेकसूर हूँ। कोई जवाब ना आया। हीरा ने कहा, अबू मैं आपकी बेटी हूँ। आसिफ साहब खामोश रहे। इनकी आंखों से आंसू जरूर बह रहे थे, मगर इन्होंने पलट कर नहीं देखा। चंद लम्हों बाद इन्होंने भरी आवाज में कहा, जैन साहब इसको ले जाएं, मैं अपनी बेटी को रुखसत करता हूँ। ये जुमला सुनते ही हीरा के कदम जैसे वहीं जम गए। इसने आखिरी बार अपने बाप को देखा, मगर इन्हें अपनी तरफ देखने की हिम्मत ना हुई। सना दौड़कर इसके गले लग गई। दोनों फूट फूट कर रोने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से अलग हो गई। जैन चंद कदम आगे बढ़ा। वो कुछ लम्हे हीरा के सामने खामोश खड़ा रहा। फिर निहायत आहिस्तगी से इसके कांपते हुए हाथों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। हीरा ने एक लम्हा इसको देखा, फिर बेबसी से अपनी नजरें झुका लीं।
जैन ने नरमी से इसका हाथ थाम लिया। वो उसे सहारा देते हुए हॉल से बाहर ले आया। बाहर बारात की ठंडी हवा चल रही थी। रात की ठंडी हवा चल रही थी। शादी की सजी हुई गाड़ियां अब तकरीबन जा चुकी थीं। सिर्फ जैन की स्याह रंग की गाड़ी दाखिली दरवाजे के करीब खड़ी थी। इसने खामोशी से गाड़ी का दरवाजा खोला। हीरा एक बार फिर मुड़कर हॉल की तरफ देखने लगी। वो इसी दरवाजे से चंद घंटे पहले हजारों ख्वाब लेकर अंदर आई थी। अब इसी दरवाजे से टूटे हुए दिल के साथ निकल रही थी। इसकी आंखों से बहते आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जैन ने बगैर कुछ कहे उसे गाड़ी में बैठने में मदद दी। दरवाजा बंद किया। खुद दूसरी तरफ जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। चंद लम्हों बाद गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता हॉल से दूर होती चली गई। पीछे रह गया एक टूटा हुआ बाप, एक उजड़ा हुआ शादी हाल, बिखरे हुए फूल, अधूरे ख्वाब, खामोश दुआएं, नाकाम मोहब्बत, एक राज जिसकी हकीकत से अभी तक कोई वाकिफ नहीं था। गाड़ी रात की सुनसान सड़कों पर खामोशी से आगे बढ़ती रही। बाहर रोशनी की कतारें एक एक करके पीछे रहती जा रही थीं। अंदर ऐसी खामोशी थी जो सांस लेना भी मुश्किल बना रही थी। हीरा खिड़की के साथ बैठी सामने देख रही, मगर उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसकी आंखों के सामने सिर्फ चंद घंटे पहले का मंजर बार बार आ रहा था। फराज इसका नाम दिल में आते ही सीना जैसे चीरने लगा। वो अभी तक ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि इसकी शादी फराज से नहीं हुई। वो तो बचपन से इसके ख्वाब देखती आई थी। दोनों ने कितनी रातें मुस्तकबिल की बातें करते। दोनों ने अपने घर का नक्शा सोचा था, अपने बच्चों के नाम तक रख लिए थे, यहाँ तक कि बुढ़ापे तक एक दूसरे का साथ निभाने के वादे किए थे। वो मोहब्बत मामूली नहीं थी, वो मोहब्बत हीरा की पूरी जिंदगी थी। मगर आज चंद लम्हों में सब कुछ खत्म हो गया था। अब वो एक ऐसे शख्स के साथ बैठी थी जिसे वो जानती तक नहीं थी। सिर्फ इतना जानती थी कि वो अब इसका शौहर था। ये हकीकत इसके दिल पर किसी भारी पत्थर की तरह गिरी हुई थी। अचानक इसकी सांस तेज होने लगी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। ऐसे महसूस हुआ जैसे गाड़ी के अंदर हवा खत्म हो गई हो। इसने घबरा कर दरवाजे का हैंडल पकड़ लिया। हीरा ने रोते हुए कहा, मुझे वापस जाना है। इसकी आवाज़ मजीद बुलंद हो गई। हीरा ने कहा, गाड़ी रोको, मुझे वापस जाना है। वो बेअख्तियार दरवाज़ा खोलने लगी। दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। हीरा ने कहा, गाड़ी रोको, अभी रोको जैन। जैन ने फौरन इसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। जैन ने सख्त लहजे में कहा, बस हीरा। हीरा ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। हीरा ने कहा, मुझे छोड़ दो। जैन ने उसे अपनी तरफ खींच लिया ताकि वो चलती गाड़ी का दरवाज़ा न खोल सके। जैन ने कहा, अब तुम जैन काज़मी की बीवी हो। हीरा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। जैन ने कहा, मैं अपनी इज्जत सड़कों पर नीलाम नहीं होने दूंगा। हीरा ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। जैन ने कहा, गाड़ी नहीं रुकेगी। हीरा ने कहा, मुझे मेरे अब्बू के पास ले जाओ। जैन ने कहा, अब तुम्हारा घर हो नहीं रहा। हीरा ने कहा, मैंने ये शादी अपनी मर्जी से नहीं की। जैन ने कहा, निकाह हो चुका है, यही हकीकत है। उसके लहजे में सख्ती थी, कोई नरमी नहीं थी, कोई तसल्ली नहीं थी, कोई हमदर्दी नहीं थी। हीरा चंद लम्हों तक खामोशी से उसे देखती रही। फिर इसने नजरें झुका ली। अब जाकर उसे पहली बार एहसास हुआ कि जिस शख्स के साथ वो बैठी है वो भी शायद आसान मिजाज इंसान नहीं। ये तो पहली रात इस पर हुक्म चला रहा था। गाड़ी मुसलसल आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद शहर की भीड़ खत्म होने लगी और ऊंची दीवारों वाले बड़े बड़े बंगले नजर आने लगे। आखिरकार वसी और अरीज सफेद बंगले के सामने गाड़ी आकर रुक गई। बड़ा सा गेट ऐसा खुला। गाड़ी अंदर दाखिल हुई। लान में खूबसूरत रोशनी जल रही थी। फुहारे से पानी की आवाज़ आ रही थी। हर तरफ खामोशी थी। जैन गाड़ी से उतरा, दूसरी तरफ आकर दरवाज़ा खोला। हीरा बेजान वजूद के साथ नीचे उतरी। उसकी कदमों में जान नहीं थी। जैन उसे सीधा अंदर ले गया। वसी ज़ाहदारों से गुजरते हुए वो ऊपर की मंजिल पर पहुंचे। एक बड़ा सा कमरा खोला गया। कमरे में नफीस फर्नीचर था। हल्की खुशबू फैली हुई थी। हर चीज़ अपनी जगह पर सजी हुई थी। मगर हीरा के लिए वो कमरा किसी कैद खाने से कम नहीं था। जैन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। जैन ने कहा, अंदर बैठो। हीरा खामोशी से जाकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। जैन चंद लम्हे से देखता रहा। जैन ने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ। वो दरवाजे तक गया, फिर पलट कर दोबारा इसकी तरफ देखा। जैन ने सख्त लहजे में कहा, मेरी इजाज़त के बगैर इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। हीरा ने खामोशी से इसकी तरफ देखा। जैन ने कहा, वरना बाद में पछताओगी। ये कहकर वो बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज चुकी थी।
हीरा चंद लम्हों तक वैसे बैठी रही, फिर जैसे इसके अंदर जमा सारा जब्त टूट गया। वो दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाकर पूरी तरह रोने लगी। इसकी हिचकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो बार बार यही सवाल खुद से पूछ रही थी कि आखिर इसके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। इसने आखिर ऐसा किसी का ऐसा क्या बिगाड़ा था। चंद घंटे पहले वो फराज की दुल्हन बनने जा रही थी, अब वो किसी और की बीवी बनकर एक अजनबी घर में बैठी है। इसने बेअख्तियार अपना परख तलाश करना शुरू कर दिया। फिर अचानक याद आए तो जल्दी में अपना मोबाइल भी साथ नहीं ला सकी। इसकी आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। अगर फ़ोन इसके पास होता तो वो सिर्फ इस बार फराज को कॉल करती, सिर्फ एक सवाल पूछती, कहाँ गए वो वादे, कहाँ गई वो मोहब्बत जो तुम कहते थे। पूरी दुनिया भी तुम्हारे खिलाफ हो जाए फिर भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा। फिर आज चंद तस्वीरों ने तुम्हारा यकीन कैसे ख़त्म कर दिया। आखिर एक बार मेरी आंखों में देख लेते, एक बार मेरी बात सुन लेते, मगर इसने तो पल भर में सब कुछ खत्म कर दिया। हीरा ने आंसू साफ किए, फिर अचानक इसके ध्यान में वो वीडियो घूम गई। इसने अपनी आंखों में मजबूत से बंद कर ली। वो अच्छी तरह जानती थी वो वीडियो असली नहीं थी, वो इसमें थी ही नहीं। चेहरा इस जैसा बनाया गया था या किसी ने जदीद टेक्नोलॉजी से सब कुछ तैयार किया। फिर कोई ऐसा धोखा था जिसे आम आदमी समझ ही नहीं सकता। फिर एक बात वो पूरे यकीन से जानती थी, वो वीडियो झूठ थी। इसमें मौजूद लड़की हीरा नहीं थी। शायद दुनिया कभी इस बात पर यकीन ना करती। शायद हर शख्स इस वीडियो को सच मान लेता, मगर सच तो इसे वही जानती थी। क्योंकि अगर किसी तस्वीर में इंसान खुद मौजूद ना हो तो सबसे पहले वही पहचान सकता है कि इसका वजूद नहीं है, ये इसका जिस्म नहीं है, ये इस हकीकत नहीं है। मगर सच कोई गवाह नहीं था। वो अकेली थी, बिल्कुल अकेली। इसे ऐसे इल्ज़ाम के साथ जैसे इसकी मोहब्बत, इसका घर, इसका बाप, इसकी इज्जत, इसकी पूरी जिंदगी एक ही दिन में इसे छीन ली गई। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक इसकी खामोशी को मजीद गहरा बना रही थी। हीरा बिस्तर के कोने पर बैठी दुल्हन का सुर्ख लिबास अब इसके लिए खुशियों की अलामत नहीं रहा था। मेहंदी लगे हाथ बार बार एक दूसरे में उलझ रहे थे। इसकी आंखें मुसलसल नम थीं। हर चंद लम्हों बाद फराज का चेहरा इसकी नज़रों के सामने आ जाता। वही वादे, वही ख्वाब, वही मुस्तकबिल, सब कुछ एक लम्हे में टूट गया था। दरवाज़ा खुला। दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। हीरा चौंक कर सीधी हो गई। जैन ऐसा ऐसा अंदर आया। इसने अपना कोट उतार कर एक तरफ रखा। चंद लम्हों तक खामोशी खड़ा रहा। हीरा को देखता रहा, फिर ऐसा से सामने रखकर कुर्सी पर बैठ गया। कमरा भर में खामोशी छा गई। आखिरकार जैन ने खामोशी तोड़ी। जैन ने कहा, तुम्हें तो दुल्हन की तरह बैठना चाहिए था। हीरा ने कोई जवाब ना दिया। वो सिर्फ झुकी हुई नजरें लिए बैठी रही। जैन ने कहा, आखिर तुम मेरी बीवी हो, शादी हुई है, तुमसे ऐसे उठाकर तो नहीं लाया। हीरा ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जमा की। हीरा ने धीमी आवाज में कहा, जो कुछ भी हुआ आपके सामने हुआ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। जैन का चेहरा संजीदा हो गया। जैन ने कहा, मेरे पास वक्त नहीं है। हीरा ने हैरत से कहा। इसकी तरफ देखा। जैन ने कहा, मुझे अपनी ज़िंदगी में एक वारिस चाहिए, इसलिए ये शादी की है। मेरी तरजीहात शुरू से वाज़ेह थी। हीरा ने कहा, मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ। जैन ने कहा, तुम्हें खुद को संभालना होगा। हीरा ने कहा, बराए करम मुझे चंद दिन दे दें। जैन ने कहा, मैं तुम्हारी हर बात मानने के लिए यहाँ नहीं बैठा। हीरा की आंखों से आंसू दोबारा बहने लगे। हीरा ने कहा, मेरी पूरी दुनिया चंद घंटों में बिखर गई। जैन ने गहरी सांस ली। जैन ने कहा, अगर तुम वाकई इतनी बेकसूर होती जितना खुद को साबित कर रही हो, फिर आज ये सब ना होता। हीरा ने फौरन सर उठाया। हीरा ने कहा, आप भी मुझ पर यकीन नहीं करते। जैन ने कहा, मैं सिर्फ वो देख रहा हूँ जो पूरी दुनिया देख रही है। हीरा ने कहा, वो सब झूठ है। जैन ने कहा। शायद चंद लम्हों की खामोशी छा गई। फिर दोबारा बोला। जैन ने कहा, मैं खानदानी आदमी हूँ, मगर मुझे औलाद की ज़रूरत ना होती तो शायद ये शादी कभी न करता। यह जुमला सुनकर हीरा के दिल जैसे एक और जख्म लग गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो इस शख्स के लिए एक इंसान से ज़्यादा उसकी एक ज़रूरत बन चुकी है। कमरे में फिर खामोशी छा गई। जैन अपनी जगह से उठा, चंद कदम चलकर खिड़की के करीब जाकर खड़ा हुआ, फिर वापस मुड़ा। उसकी नज़रें एक लम्हे के लिए हीरा के लिबास पर ठहरी। वो हल्के से मुस्कुराया। जैन ने कहा, लगता है शादी की तैयारी बहुत सोच समझ कर की गई थी। हीरा ने फौरन नजरें झुका ली।
اسے فوراً پارلر کا وہ دن یاد آ گیا۔ سنا کی ہنسی، فل باڈی ویکس، پھر اس کی چیخیں، فراز کی پسند، ڈوریوں والا لباس، وہ سب کچھ جو اس نے صرف فراز کے لیے کیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا یہ سب فراز کے لیے تھا، ہر تیاری، ہر خواب، ہر خواہش، مگر قسمت نے اسے ایک ایسے شخص کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جو سمجھنے کی بجائے اپنے فیصلوں کی زبان جانتا تھا۔ زین اٹھ کر ہیرا کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا، دوپٹہ ایک جھٹکے سے ہٹایا، وہ صرف کانپ رہی تھی۔ وہ بھی ڈر کے مارے اور ڈوریاں کھولنے لگا، پھر بولا، اس سے لگتا ہے تم دونوں کی لو میرج تھی، پوری تیاری کی تھی۔ ہیرا حیران رہ گئی، اس کا مطلب تھا کہ شاید وہ اس بات کے بارے میں اشارہ کر رہا تھا کہ تم نے ویکس کروائی ہے۔ معافیا مانگنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، یہ سب کچھ نہیں کرو، میں سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ پتہ نہیں کیا کیا، یہاں تک کہ ذہن کا بھی جیسے دل اٹھ گیا۔ وہ وہاں سے اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، پتہ نہیں تم لڑکی کو زندگی کی حقیقت کم سمجھ آئے گی۔ زین نے 4 لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول دے، وہ صرف اتنا بولا۔ زین نے کہا، آرام کر لو، صبح بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ دروازہ بند ہوا، کمرے میں ایک بار پھر خاموشی اتر آئی۔ ہیرا نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ صرف ایک دن اس کی پوری زندگی اتنی بری طرح سے بدل چکی تھی۔ صبح کی ہلکی دھوپ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں پھیل رہی تھی۔ ہیرا پوری رات جاگنے کی وجہ سے گہری نیند میں تھی۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر ایک درمیانی عمر کی خاتون اندر داخل ہوئی۔ نوکرانی نے نرمی سے کہا، بی بی جی اٹھ جائیں، صبح ہو گئی۔ صاحب نے کہا ہے تیار ہو جائیں۔ ہیرا نے آہستہ سے کہا، ٹھیک ہے میں تیار ہوتی ہوں، آپ جائیں۔ اور اس طرح ہیرا کی زندگی ایک خوشگوار زندگی سے کسی کی غلطی کی وجہ سے بالکل بدل چکی تھی۔ نیکسٹ پارٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں، اور نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ بہت جلد فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔